What can be the strategy? What can be the pointers to keep in mind while going for current affairs for UPSC? If you are struggling to know more about it, then this is the right place to be. So, hello guys, my name is Avinash. I welcome you to my YouTube channel, the one stop point for all your UPSC related queries. So, today we are going to start off with the pointer, the topic that is strategy. This is the video or in this particular playlist which will tell you how you should be proceeding with the current affairs, specifically with the Hindu newspaper for UPSC. So if you had not watched earlier videos, then I request you to just go back and watch those videos, because after that this video will make more sense to you. Now let's move forward with the video for today, that is strategy for UPSC current affairs. So let's get started. So guys, we had already discussed about, let me zoom in. We had already discussed about what to read, what not to read, how to make notes from newspaper, how we should balance our time, how we should proceed toward editorial as a pro. As a pro means how we should move forward so that we are able to read newspaper, make its notes, at that too as a pro level gamer. So now we are moving towards strategy part, that what should be our strategy. I had deliberately had that particular section of strategy after all those pointers, because I wanted you to be very much clear earlier about note making and all. Because until and unless you are not aware कि note making करना है नहीं करना, या हमें क्या क्या करना है द हिंदू न्यूज़पेपर में, तब तक अगर मैं स्ट्रेटेजी पाथ के बारे में आपसे डिस्कस करती तो उसका इतना सेंस मेकअप नहीं होता है। बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में करना क्या क्या है और कैसे कैसे करना है। सो इट्स बेस्ट टाइम टू जस्ट स्टार्ट ऑफ विद कि हमें अब स्ट्रेटेजी बनानी है। बिकॉज नाउ आई डू, मेरा टारगेट क्या है, मेरे कॉन्फिडेंस क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हो सकती है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती है। सो नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड विद द स्ट्रेटेजी पार्ट। सो लेट्स गेट डिग डीप इन टू स्ट्रेटेजी. So let's start it off by one. Let me zoom it further. So firstly, first point is don't underestimate or overestimate newspaper. हमें न्यूज़पेपर को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, जैसे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते हैं कि वो 1 घंटे का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। 1 सवा घंटे में अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ो विद द पॉइंटर्स दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, तो आपका वो न्यूज़पेपर खत्म हो जाता है। तो आप वो 1 सवा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने की बजाय आप जाके वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से उसे कवर करने की कोशिश करते हो, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन इज़ फॉर योर सेल्फ, इट्स नॉट फॉर द अदर्स हु आर मेकिंग वीडियोज़ फॉर लाइक एडिटोरियल एनालिसिस या जो भी मतलब न्यूज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, डोंट अंडर एस्टिमेट करंट अफेयर्स, उसे लीव आउट नहीं करो, न्यूज़पेपर को लीव आउट मत करो। एंड डेफिनेटली डोंट ओवर एस्टिमेट ऑल्सो, कि ऐसा नहीं है कि आप 3-4 घंटे सिर्फ करंट अफेयर के ऊपर ही दे रहे हो। करंट अफेयर से क्या मतलब है, सपोज आपने 1 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर 1-1.5 घंटा आपने वीडियोस देख ली, फिर उसके बाद आपने कोई और मैगजीन्स पढ़नी शुरू कर दी, तो ये भी कोई सेंसिबल ऑप्शन नहीं है। बिकॉज यू हैव टू एंड अप डूइंग ऑल द स्टफ्स रिलेटेड टू current affair, that too within 2 hours. So you have to understand that point. Along with that, you have to keep second pointer, that is follow one newspaper each day, and that to yourself, along with precise note making जो हमने already discuss कर लिया है। if you hadn't watched that video, तो वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आई बटन के ऊपर दिख रहा होगा, just click there and you will get back to the point of the note making वाला video. So if you don't know how to make notes, watch the video that I already displayed. देन कम्स रिवाइज न्यूज़पेपर नोट्स वंस इन अ वीक। ये वही सब स्ट्रेटजीज हैं जो हमने कहीं ना कहीं पहले डिस्कस की हैं, बट नाउ इज़ द टाइम टू मेक इट मोर कॉन्क्रीट, क्योंकि अब आपको सब चीज़ समझ में आ चुकी है कि एक्चुअली द हिंदू को कैसे हमें टैकल करना है। डोंट थिंक टू मच अबाउट रिलेटेबिलिटी, कि क्योंकि आजकल यूपीएससी में सबसे बड़ा बजवर्ड है रिलेटेबिलिटी एस्टैब्लिश करनी है। यू हैव टू बी वेरी गुड विद रिलेटिंग थिंग्स विद वन एंड वन विद अनदर। सो बेसिकली अंडरस्टैंड वन थिंग, रिलेटेबिलिटी खुद से हो जाता है वंस यू डू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट वन टिपिकल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक लोकेशन है, आपको उसकी जोग्राफी का भी पता है, आपको उसकी पॉलिटी का भी पता है कि वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, वहाँ के सर्कमस्टांसेस आपको पता है, वहाँ की हिस्ट्री आपको पता है, तो अपने आप रिलेटेबिलिटी बन गई। सो इट्स मोर अबाउट द कवरिंग ऑफ टॉपिक्स। वंस यू आर good enough and you had covered topics, then you will be definitely in position to answer all those type of questions. So don't think
टू मच अबाउट रिलेटेबिलिटी अपने आप से स्टैब्लिश हो जाएगा। जस्ट फोकस ऑन न्यूज़पेपर। जब आप न्यूज़पेपर रोज से पढ़ोगे आपको खुद से उसकी पर्टिकुलर इशू की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज़ पता चलती चली जाएगी। एंड जो स्टैटिक में से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, वो भी कहीं ना कहीं हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड ज़रूर होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड रीड न्यूज़पेपर बाय आवर सेल्फ, और उसके नोट्स हम बिल्कुल प्रॉपर बना के रखें जैसे मैंने आपसे कहा है। हमें नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि काट काट के उसकी पेस्ट बना करके रखनी है कुछ भी फोटोज एंड ऑल। वी हैव टू बी वेरी मच श्योर कि हम क्या पढ़ा है और कितना रिटेन हुआ है, कितना हम लिख पा रहे हैं, हमें वो चीज़ें एनालाइज करनी है। देन एक मंथली मैगजीन्स के बिना दूसरी मंथली मैगजीन मत लेना, कोई भी एक जो भी आपको अच्छी लगे वही एक मंथली मैगजीन रखना। करंट अफेयर की मल्टीपल मैगजीन्स मत रखना। एक बोलेगा मुझे लगता है ये वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये इनका बहुत अच्छा मंथली मैगजीन है, आई शुड गो विद इट। दूसरा बोलेगा मुझे दूसरे का अच्छा लगता है। जिसको जो मैगजीन मंथली मैगजीन अच्छा लगता है जस्ट फॉलो दैट, बट द कंडीशन इज कि सिर्फ एक ही होना चाहिए वो। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड है, हर चीज़ को ओवर इम्फेसाइज करके उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच सोच के उन्हें कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, मेक इट एज सिंपल एज यू कैन, बिकॉज जितना सिंपल होगा सिंप्लिसिटी इज बेस्ट पॉलिसी, राइट। तो जितना सिंपल रखेंगे उतना चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। मेक न्यूज़पेपर रीडिंग योर हैबिट, नॉट हेडिक। आपके पेरेंट्स आज भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी बड़े हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जबकि वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि ये जो एक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट थी, वो जो हमारे बड़े थे, जो हमसे पहले वाली जनरेशन थी, उनके अंदर ये हैबिट ऑलरेडी इनकलकेटेड थी। आजकल के लोग फिर भी इतना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते। वी ऑलवेज क्लेम कि हमारी लाइफ बहुत बिजी है, ये है वो है, बट उनकी लाइफ भी इतनी आसान नहीं थी। बट हर किसी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो शायद ऐसी चीज़ है, या जो मेरे इश्यूज़ हैं वो ऐसे इश्यूज़ हैं जो शायद किसी और के ना हो, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हर किसी के अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट somehow we have to conquer them. That's how life is, and that's how we can proceed toward this life. So this is something we have to keep in mind कि we have to make that habit of reading newspaper. उसे headache मत बनाओ। अगर चीज़ों को बहुत समझ के करोगे, करना तो पड़ेगा पर वो करना मुश्किल हो जाएगा। सो रिलेट विथ स्टैटिक टॉपिक्स एंड ऑल्सो डू मॉक टेस्ट टू एनालाइज प्रोग्रेस। क्योंकि देखो जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, मैंने जितना पढ़ा था मुझे उसमें से कितना रिटेन हुआ है, तब तक उन चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आपने कितना एफर्ट डाला था, आपने कितने घंटे पढ़ा था, कितनी शिद्दत से पढ़ा था, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। So it's important to recall things. It's important to just move forward with things. So I request you to just रिलेट थिंग्स विथ स्टैटिक टॉपिक्स। और वो कैसे होगा, मॉक टेस्ट ज़रूर करना। जैसे सपोज कीजिए कोई भी आज एक टॉपिक आया है एडिटोरियल सेक्शन में, और वो टॉपिक आया है रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल इशू, राइट। कोई भी पॉलिटी के आर्टिकल से रिलेटेड आया है, तो वो जिस सेक्शन के अंदर आता है आप पीवाईक्यू से उठा लीजिए। पीवाईक्यू से उस सेक्शन के अंदर जो जो क्वेश्चंस बनते हैं आप उन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर लीजिए। पर डेफिनेटली ये तब हो सकता है जब आपको थोड़ा बहुत, आप हर चीज़ से गो थ्रू हो, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो जीएस के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ लिए हैं थोड़े बहुत, और आपको न्यूज़पेपर के बारे में भी काफ़ी हैप्चुअल हो आप उन चीज़ों के लिए, तब आप ये चीज़ें ज़रूर अपनी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड कर सकते हो। इन स्टार्टिंग फेज डेफिनेटली वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, but in future you can do that. So basically let's summarize the points that we had discussed right now. So first point is, don't overestimate or underestimate, and then follow one newspaper, make notes of it and revise them, and definitely follow one magazine and don't overcomplicate things. Make it simple, make newspaper reading your habit, and whenever you will be comfortable, also start to attempting MCQs from that topic that you had covered in the newspaper. So that was it for this particular section, but I hope you had learned a lot of things.
If you hadn't subscribed to my YouTube channel, then I request you to just subscribe it right now and hit the bell icon so that in future whatever videos I upload, just you get notification for that. Along with that, guys, I also do have, if you want to know more about these type of things, if you want to know more about UPSC preparation, that I conduct webinar. The It is basically a master class which is totally free. You can come there, you can get a lot of information, you can get lot of insights that you must be missing right now. So if you want to register for it, the link is in description below. I will love to see you over there at the master class. Do register it today itself. That was it for this particular video. I will see you in the next video. Till then, bye bye guys.